हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश में तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां चल रही हैं। अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, आईसीयू की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देश के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हो रही है। तो क्या भारत में थर्ड वेव को टाला जा सकता है? थर्ड वेव कोरोना की मौजूदा वेव से कितनी ज्यादा घातक होगी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश नारायण। आपको बता दें, डॉक्टर राजेश नारायण कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उसके अलावा हमारे साथ इंग्लैंड से ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मेडिसिन डिपार्टमेंट से प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का सर बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। डॉक्टर राजे, पहले तो आप ही के पास में आना चाहूंगा। थर्ड वेव ये बहुत डरा रही है, तो क्या किसी तरह से इस थर्ड वेव को टाला जा सकता है? सर, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही। प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या इसको टाला जा सकता है? हाँ, टाला जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल सकता हूँ। कोशिश कीजिएगा थोड़ा हिंदी हो, लेकिन आप बोल सकते हैं। तो सेकंड वेव तो काफी सीरियस हो रहा है। वैक्सीनेशन को बढ़ाना है इंडिया को, और किसी तरह से लॉकडाउन करना है नेशन वाइड। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोफेसर रविंद्र की, भारत में कोरोना की तीसरी लहर, कहा ऐसा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में इसका खतरा मंडरा रहा है, तो क्या कब तक आएगी, कुछ इसका अंदाजा आप दे पाएंगे? जी, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, आप ही से पूछा मैंने। अच्छा, फिर से इंग्लिश में बोलिए। जी, आई एम आस्किंग दैट द थर्ड वेव, it will come when? I mean, people are saying that by the month of October or November it can come. Well, we haven't finished this current wave. It's very difficult to imagine what will happen. I think it's possible that this wave will continue as it is for the next few months. So I would predict that if the virus is going to come back again, it is all depending on how much vaccination we manage, how far the infections are reduced, and the opening up of society again, and the timing. So I think these are the key things. I don't think a third wave can be predicted right now. तो प्रोफेसर रविंद्र का कहना है कि वैक्सीनेशन अगर प्रॉपर हो जाती है, यानी दोनों डोज कंप्लीट हो जाती हैं, तो इसको टाला जा सकता है। यानी जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा तभी जाकर इसको टाला जा सकता है। प्रोफेसर रविंद्र, आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू, आई मीन, हाउ मच शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द टू डोजेस? आई मीन, इफ वन हैज गॉट द फर्स्ट डोज, व्हेन शुड बी द नेक्स्ट डोज कैन बी गिवन? So the second dose, it depends which vaccine we're talking about. I think that the dosing interval for the vaccines in India has been set. I think that it can be extended for the Covishield up to 3 months based on data we have seen. But other vaccines I have not seen the data for. So it may be important to extend the dosing in order to give more people one dose of vaccination. And also we should understand that many people have been infected with coronavirus in the past, in the first wave and this wave, and if they receive even one dose of vaccine, they may have very good levels of protection, because the first infection also provides some degree of protection from reinfection. So the dosing interval between first and second dose may be less of an issue in India, where there is a lot of infection. Most people have been infected already. In India, now government has announced for Covaxin, the gap should be now for 12 weeks, or maybe it will vary from 12 weeks to 16 weeks. Well, I think there is no this is a practical decision. I agree with it to some extent, because there is not enough vaccine for everybody. So
increasing the dose is one of the responses which could be done. In my view, I think, as I said, it would be okay to do this because many people already have had infection before. So you are already boosting with one dose. So I think the extended dosing is, in my view, acceptable. प्रोफेसर रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ डॉक्टर रवि गोडसे जुड़ गए इस वक्त अमेरिका से। डॉक्टर रवि गोडसे, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। 18 साल से कम उम्र वाले जो लोग हैं उनको संक्रमण से कैसे बचाया जा सकता है, इस बारे में अगर आप बता पाए तो। सॉरी कहिए क्वेश्चन। सवाल मेरा यह है सर कि 18 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उनको संक्रमण से कैसे बचाया जा सकता है, इन्फेक्शन से कैसे बचाया जा सकता है? देखो, अभी कोविड चाचा से आपकी मुलाकात तो होनी है। अगर आपको डिसीज हो जाएगा, नहीं तो वैक्सीन हो जाएगी। आप वो जो कहते थे ना, मैं घर पे बैठूंगा कोविड नहीं होगा, वो सब माया है, वो माया मोह मिथ्या है। तो उनको लोगों से सिर्फ ऐसा ही बचाना है, वैक्सीन देना है। अमेरिका ने 12 से 15 तक चालू किया है, कल ही चालू किया है, ऑलमोस्ट एक दिन में खत्म भी हो जाएगा। और 2 साल से 12 साल का हमारा 1 सितंबर को चालू हो रहा है। अमेरिका में काफी वैक्सीन के डोज पड़े हैं। कोवैक्सीन का अभी ट्रायल चालू हुआ है, मैंने सुना है। लेकिन वो क्या है, मतलब अगर ट्रायल क्लियर कर भी दिया तो डोसेस कहां से आएंगे? तो ये फाइजर मॉडर्ना के पड़े हैं डोसेस, इनको वैक्सीनेशन से ही बचाना है। लेकिन लोगों को ये भी बताना है कि डरिए मत, बच्चों का इम्यूनाइजेशन, जिनका जो प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छा होता है, तो डरने की बात नहीं। अगर वो भी होगी गया उनको, तो वो बरामद हो जाएंगे। डरिए मत, लेकिन आप उनको सिर्फ घर बैठे अभी बचा नहीं सकते। और लाइफ भी रिज्यूम करनी है ना, स्कूल जाना है, बच्चों को एक साथ झगड़ा करना है, क्रिकेट खेलना है, वैसे तो वो बड़े होंगे ना। बच्चों के नन्हे हाथों को छू देने दो चांद सितारों को, 4 किताबें पढ़ के वो हम जैसे हो जाएंगे। उनकी भी कुछ सोचनी है मेंटल हेल्थ की वगैरह, तो ये अभी सब जोल जाल में नहीं पड़ना है। उनको वैक्सीन देना है, सबको, बच्चों को भी वैक्सीन देना है। पर आपने चूंकि बच्चों का जिक्र किया, थर्ड वेव के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए काफी डेंजरस होगी, काफी घातक होगी। तो उस बच्चों में किस तरह के लक्षण हैं कोरोना के, अगर ये आप बता पाए तो। देखो, मैं तो पीडियाट्रिशियन नहीं हूं, लेकिन अमेरिका में हमने ऐसा नहीं देखा है कि ज्यादा बच्चे एडमिट होते हुए नहीं देखे थे। कुछ 30,000 एडमिशंस थे अस्पताल में। वो क्या होता है ना, ये कोरोना अगर आपके घर में आया हुआ चोर है, तो बच्चों में 2 दरवाजे होते हैं और एडल्ट में 5 दरवाजे होते हैं। तो एडल्ट जब कोरोना घुस जाता है, बच्चों 2 दरवाजे इजीली बंद कर पाते हैं। ये जो नया वेरिएंट आया है B117, या इंडिया का जो म्यूटेशन है B1617, उसे 2 दरवाजों से जगह पे 4 दरवाजे हो गए। तो इन्फेक्शन का रेट बढ़ गया है। और ये भी सोचना है कि पहले साल 2020 में अगर 100 बूढ़ों को होता था तो 10 बच्चों को होता था। अभी शायद 50 बूढ़ों को हो रहा है और 15 बच्चे को हो रहा है। तो एकदम वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लग रहा है नंबर, क्योंकि बूढ़ों को कम हो रहा है। तो बच्चों में ज्यादा दिखना, दिस कुड बी अ साइन ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन इन एल्डरली, और ऐसा दुनिया भर में दिखाई दिया है। तो बच्चों में डरने की बात नहीं है। आप पेरेंट्स को बोलो बिल्कुल डरो मत, नहीं तो उससे इम्यूनिटी और कम हो जाएगा। डॉक्टर अजय नारायण, हमारा आपसे संपर्क टूटा था। मेरा सवाल आपसे ये था कि कोवैक्सीन के बारे में अब केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि 12 से 16 हफ्ते का गैप होगा। तो ये जो अंतर है 2 डोज के बीच में, क्या इससे फायदा होगा? तो जहां तक आपका सवाल है शायद कोविशील्ड के बारे में, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस कोविशील्ड के बारे में, जी, कोविशील्ड के बारे में। जी, तो कोविशील्ड में आप देखा गया है कि आपको मालूम होगा कि जब यूके में ये वैक्सीन जब शुरू हुआ था, हमने शुरुआत से ही हमने 12 हफ्ते का गैप रखा था। और बाद में ये रिसर्च आया कि अगर फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में अगर 12 हफ्ते का गैप रखा जाता है तो उससे बेटर होता है इम्यूनिटी, उससे बेटर प्रोटेक्शन होता है। जो कि अब नया स्टडीज आ गए हैं जो कि प्रूव करते हैं कि अगर 12 हफ्ते के गैप पे अगर दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन के बीच में 12 हफ्ते का गैप रखा जाए तो इम्यूनिटी बेटर होती है। तो ये हम लोग शुरू से इंग्लैंड में कर रहे थे। ऑब्वियसली शुरू में इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, लेकिन अब ये साबित हो गया कि हाँ, 12 हफ्ते के गैप रखना ठीक होता है। आप ये समझे कि 12 हफ्ते के गैप रखने से एक और फायदा हो रहा है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को फर्स्ट डोज वैक्सीन दे पा रहे हैं, जो कि इंडिया में भी अब शुरुआत हो गई है। अपने लोगों को ज्यादा फर्स्ट डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो हमने ये देखा है कि 2 चीज इफेक्टिव रहा है, एक काफी फास्ट वैक्सीनेशन और दूसरा लॉकडाउन। आप समझे कि अभी इंग्लैंड में नंबर ऑफ डेथ्स 5-10 हो रहे हैं पर डे, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस 1000 हो रहे हैं या 2000 हो रहे हैं पर डे, लेकिन हम लोग अभी भी लॉकडाउन में
मंडे से हम लोग का लॉकडाउन ईज होने वाला है। तो ये समझने की बात है कि सिर्फ वैक्सीनेशन से ये नहीं अचीव किया गया है, ये वैक्सीनेशन और लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, जो कि हम लोग के यहाँ यूके में लॉकडाउन काफी इफेक्टिव तरीके से रखा गया और काफी इफेक्टिव तरीके से सरकार उसका लोगों में लोग भी उसका पालन कर रहे हैं। तो लॉकडाउन और इफेक्टिव वैक्सीनेशन के चलते अभी यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस काफी कम गए हैं, काफी नंबर ऑफ डेथ्स कम गए हैं। आप समझे कि सरकार ने आज यूके में फिर से ऐलान कर दिया कि आर्मी बुलाया जाएगा, कि वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेजी से बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको शायद मालूम हो कि इंडियन वेरिएंट यहाँ आ गया है। कुछ हजार केसेस इंडियन वेरिएंट के ऑलरेडी यूके में पहुंच गया, जिसके चलते जो नॉर्थ में है, ग्रेटर मैनचेस्टर एरिया, बोल्टन में काफी ऐसे केसेस आ रहे हैं। इसके चलते सरकार ने आज से अपना वैक्सीनेशन ड्राइव और तेजी से बढ़ा दिया। तो वैक्सीनेशन ऑब्वियसली इज समथिंग दैट वी हैव टू डू ऑन अ लार्जर स्केल इन अ कंट्री लाइक इंडिया। डॉक्टर गोडसे, आप कुछ इसमें बोलना चाह रहे हैं? हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए इसको इंडियन वेरिएंट बोलने में। ये जो फ्लू था ना 1918 का स्पेनिश फ्लू, वैसा वेव तो अमेरिका से आया था, लेकिन उसको बोलते हैं सब लोग स्पेनिश फ्लू। पे हमला हुआ था तब उसको फ्रेंच बुखार कहते थे, ब्रिटिश बुखार कहते थे। अगर ये म्यूटेशन आपने ठीक से देख लिया तो जो B117 है ब्रिटेन का म्यूटेशन, उसमें और इंडियन का जो डबल म्यूटेशन है B1617, वो काफी एक दूसरे के नजदीक है। पता नहीं हम लोग क्यों सब जुड़े हुए हैं उसको इंडियन म्यूटेशन कहने में। नहीं तो ऐसा ना हो कि 3 साल में लोग भूल जाए ये कहां से आए। जो पहला जब आया था तो ट्रम्प साहब को सब लोग पीटते थे, वो चाइना वायरस बोलते थे। तो चाइना वायरस कोई नहीं बोल सकता, लेकिन अभी इंडियन म्यूटेशन बनाने में सब लोग जुड़े हुए हैं। क्या है इंडियन म्यूटेशन, हमको कैसे पता चलेगा? मैं सब आपके दर्शकों को एक टेस्ट देता हूं। अभी आप कितने लैब्स को जानते हो? आपके शहर में 5-10 लैब्स है। अरे वो लैब में कहाँ म्यूटेशन टेस्टिंग कराएंगे यार? मेरे एक चाचा जी है, उनका डायबिटीज है, वो 100 का नोट पकड़ा देते हैं, उसको एक नंबर अच्छा देता है शुगर का। ऐसे लैब में कहाँ हो रहा है म्यूटेशन टेस्टिंग? और वो सब वैक्सीन है, वो 100% नहीं चले तो सब म्यूटेशन के अगेंस्ट चलते हैं। फाइजर मॉडर्ना तो इंडियन म्यूटेशन के अगेंस्ट भी चलता है। अभी म्यूटेशन का लोड मत ले लो, जो वैक्सीन हाथ में आए वो पकड़ लो और ले लो भाई, एक ही रास्ता है। बिल्कुल। डॉक्टर अजय नारायण, अगर किसी ने पहला डोज ले लिया है तो कितनी प्रोटेक्शन उसको मिलती है? क्योंकि दूसरी डोज का जो गैप है उस बीच में कितने चांसेस उसके रहते हैं कि इन्फेक्टेड हो सकता है वो शख्स? तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज, जहां तक रिसर्च हुई है, साइंस ने प्रूव किया है कि फर्स्ट डोज के बाद 2 हफ्तों के बाद आपको 60-70% तक इम्यूनिटी मिल सकता है वायरस से। ऑब्वियसली सेकंड डोज जब आपको मिलता है तो 80-90% तक रिसर्च ने साबित किया है कि इसका इम्यूनिटी मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट डोज से 60-70% म्यूटेशन जो वायरस से प्रोटेक्शन हो जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि इसलिए भारत ने भी ये अपनाया है कि ज्यादा लोग को फर्स्ट डोज दे रहे हैं। और यहाँ इंग्लैंड में भी हम लोग ने अब ऑलमोस्ट करीब 68-70% लोगों को फर्स्ट डोज दे दिया है वैक्सीन का। और सेकंड डोज अभी हम लोग करीब 38-40% को दे चुके हैं यूके के पॉपुलेशन में। तो इसलिए जरूरी है कि फर्स्ट डोज हम लोग लार्ज स्केल पे काफी ज्यादा लोगों को दें। जी डॉक्टर अजय नारायण, डॉक्टर गोडसे आपके पास आना चाहूंगा। ताइवान, दक्षिण कोरिया, इजराइल, यूरोप और अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो थर्ड वेव को करीब करीब इन्होंने टाल दिया है। भारत इन देशों से क्या कुछ सीख सकता है? बाकी के दुनिया के देश अपने सारे जहां से अच्छा को क्या सिखाएंगे? सब देशों के खुद के प्रॉब्लम है। ताइवान में मैं सब एग्जांपल देता था, आज ही ताइवान में कुछ प्रॉब्लम आया, ऐसा सुबह 3 घंटे में पहला न्यूज आया था। वैसे तो पहले ताइवान में सिर्फ 11 डेथ थे, वियतनाम में सिर्फ 35। सिर्फ नहीं कहूंगा क्योंकि जो लोग मर चुके हैं वो मर चुके हैं। मलेशिया में 979। वो थोड़े इंडिया के जैसे, लेकिन इंडिया में कितना ट्रैफिक आना जाना होता है, वो थोड़े पर्याप्त संसाधन भी कम है। हमें सीखने की सिर्फ जरूरत ये है, एक्चुअली क्या नहीं करना चाहिए वो हम लोग उनसे सीख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था। पूरा टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन किया है। वो पैतरा हमारे देश के लिए गलत है। अगर आप बस कंडक्टर हो तो क्या आप टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन करोगे? हॉटस्पॉट में क्या टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन करोगे? तो वो जो देशों में अभी चल रहा है, न्यूजीलैंड में, सिंगापुर में, वो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन में कोई पॉइंट नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक और क्विकली कहूंगा, वैक्सीन के कोविशील्ड का पहला डोज को सीरियस डिसीज से 70%, सीरियस डिसीज से ऑलमोस्ट 100% प्रोटेक्शन है, जो 90 दिन तक रहता है। मामूली डिसीज से आपको 70% प्रोटेक्शन है। वो दूसरा डोज अगर 4 हफ्ते में लिया तो वो
प्रभाव एक्चुअली कम होता है, 55% होता है। जब टाइम है तो बता दूंगा क्यों ऐसा होता है। जी डॉक्टर गोडसे, ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था कि अगर कोई देश अच्छा कर रहा है तो शायद उससे वो उसकी अच्छाई सीखी जा सकती है। यूरोप और अमेरिका की अगर मैं बात करूं, क्या उनसे कुछ सीख सकते हैं? अमेरिका से देखो, यूरोप में जो जर्मनी में देयर आर मोर मास्क देन पीपल, टेस्टिंग ट्रेसिंग सब किया, फिर भी वेव आता है। तो लोगों की लापरवाही का और ये पैंडेमिक के आने जाने का इतना कोई ताल्लुक नहीं है। मास्क पहनते रहो, लेकिन फिर भी अपने सारे गलतियों के इल्जाम जनता को मत दो कि जनता लापरवाही थी। अमेरिका से सिर्फ इतना सीख सकते हैं, हम लोग के 4-4 हजार लोग मर रहे थे, लेकिन हम डरे नहीं। एक के बाद एक दवा निकाली, रेमडेसिविर अमेरिका की है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगर इंडिया में ला दिया तो 3 हफ्ते में महामारी का सर काट सकते हैं। जैसा का अमेरिका ने फाइजर लाया, मॉडर्ना लाया, ये जो कोविशील्ड है इंडिया का, मई 2020 में जब मंकीज को हुआ था वायरस, वो कोविशील्ड मर चुका था। अमेरिका ने, टैक्स पेयर ने उनको 15,000 करोड़ रुपया दिया था वो टाइम पे कोविशील्ड के रिसर्च के लिए। तो अमेरिका ने पूरा पैसा लगाया उसके ऊपर, अच्छा काम किया है। वही सीखना है, डरना नहीं, उसका मुकाबला है, भागना नहीं है उससे जाके डट के मुकाबला करना है। डॉक्टर अजय, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मास्क कब हटा पाएंगे? क्या जब दोनों डोज लग जाएंगे? क्योंकि अमेरिका कुछ इस तर्ज पे अब चल पड़ा है, भारत में लोग कब मास्क हटा पाएंगे? ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, क्योंकि जब तक कि हमारे 80-90% लोग वैक्सीनेट पूरे अच्छे तरीके से नहीं हो जाते हैं, तब तक मास्क नहीं हटाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी बताना चाहूंगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि इंडिया में काफी लोगों का वैक्सीन लगने के बावजूद उनको कोविड हो रहा, कोविड इन्फेक्शन पकड़ रहा है। तो इसलिए इन्फेक्शन का रिस्क, कोई भी वैक्सीन वर्ल्ड में 100% सक्सेसफुल नहीं होता है। 60, 70, 80, 90% सक्सेस होता है, 10-20% चांस आपको तभी इन्फेक्शन होने का रहता है। तो मास्क का जहां तक हटाने की बात है, इंडिया अभी मास्क से काफी दूर है, महीनों दूर है। तो मास्क हटाने की तो कोई सवाल ही नहीं उठती। मैं तो कहूंगा कि शायद इस साल वो नौबत नहीं आएगा। 30 सेकंड्स में डॉक्टर गोडसे कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे आप? ये जो एक्सपर्ट है वो इतने अभी डर गए, उनको इस खौफ का नशा चढ़ गया है। उफ वो तबस्सुम हल्का हल्का, हाय वो भीगी भीगी पलके, वक्ते रुस्कत उन पे गरा था, लम्हाए रुखसत हमसे ज्यादा। अभी उनको मास्क छोड़ना ही नहीं है। अमेरिका का 100% वैक्सीन प्रभावी है, हम लोग मास्क तोड़ रहे हैं। इंडिया भी बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएगा, बहुत जल्दी। आप डरिए मत, न मुंह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो। डॉक्टर रवि गोडसे, डॉक्टर अजय नारायण, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और आपने किस अंदाज में यह आशा जगाई है कि अगर हिम्मत रखें, दोनों वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लगें और ज्यादातर लोगों को लग जाए, तो शायद वो दिन भी आएगा जब मास्क के बिना घूम पाएंगे लोग। यह आशा जगाने के लिए सर और हमें वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कोरोना बायोलॉजिकल वेपन है? लेटेस्ट स्टडी में कई बड़े सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए मेरे सहयोगी अमित पालित के साथ ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।